Apologies for being late, and thank you for inviting me here, sir. So I was a student of CC PDPU. I was a student here for 1 year. I was preparing for civil services, and in my initial years, it was very difficult to make up a mind, or at least to gather yourself to prepare for this examination. So sir has told me that many of you are interested in civil services. So when you take a decision that you are going to write this exam, every one of you must be having this fear or this insecurity, I should say, that whether we would be able to clear it or not. If we are able to clear it, in which attempt, how much time will it take, what will happen if we are not able to clear it. So these all insecurities are there in everyone's mind. I was also going through the same pressure, fear, insecurity, those things. The very important thing when we take this call that we are going to prepare for this examination, that we are going to dedicate ourselves for this examination, are twofold. There are two very important things. First is don't rush, don't hurry. So if share my experience, everyone comes with the view that we would be clearing it in the very first attempt. We would be getting first rank in the first attempt, and our photo would be published in the cover page of the newspaper. Everyone comes with that dream. No one comes with the dream that we would be becoming, say, IAAS officer, or say we would be joining Railway Protection Force. Everyone comes with only three options: either IAS, IPS, or IFS. Right. So I was also the same, but I would say don't rush in this preparation. Have patience. Although this exam could be cleared in 1 year, uh, with 1 year good preparation, but don't take it this way that if you are not getting selected in 1 year, you will be leaving it. And come with a backup option. Come with a leeway. So I also I started preparing in my final year. I was also of the view ki if I don't could not make it in this attempt, I'll join a law firm. But when you start preparing, you realize your potential, and that gives you the confidence. That brings me to my second point, that you need two things. First is patience, and second is the confidence or the belief in yourself. So when you feel that you have that thing in you, you have that caliber in you, you would be able to clear this examination. You would be able to sustain that pressure which I was talking to you in the when I started this conversation. The belief in yourself, the belief in your preparation, that is a very important thing to stay committed to this preparation, to this examination. Everyone will face those challenges, even if you're clearing it in first attempt or in second or taking your all six attempts. All will have those challenges. It is only the belief in yourself, in the process, in your preparation, that will keep you going. So what I mean by belief means when you feel that you can clear this examination, when you feel that you have that aptitude in yourself. So if someone from amongst you have started preparing for this examination, you must have read about ethics, GS4 paper. In that there is something known as attitude, aptitude. These are the keywords in the syllabus. So when you have those things in your, when you feel that you have that aptitude in yourself, aptitude means you think you would be able to sustain the pressure. You think you would be able to take a decision on a wisely manner. You think you have that honesty, integrity in yourself. That will keep you moving on this path. And so these are some metaphysical talks. But if I talk about how to develop that belief, because this exam is very difficult in the sense tiring. I won't say difficult, it's very easy to crack, but it's tiring, it's time consuming. So how to keep moving on that path, that would require two three things from every aspirant. First is doing basics in the sense covering newspaper or doing current affairs from whatever source you are doing, reading the basic textbooks. And now, when I'm talking about textbook, I should mention it that many of us are of the view, हमें ये भी पढ़ना है, we have to read this. Is English fine if I switch between English and Hindi? English fine. So when we are of this view कि we have to read this book, that book, we have to read almost all the books which are there in the market with respect to civil service preparation. But सच बताऊं ऐसा नहीं होता है.
बहुत ही लिमिटेड बुक्स होती हैं, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है जो हमें पढ़ना होता है। तो इफ मैं अपना बताऊं, मैंने, अगर आप जैसे कई टॉपर्स के आपने टॉक्स देखे होंगे, वो बोलते हैं इकोनॉमिक्स से रमेश सिंह पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के लिए वी हैव टू रीड नितिन नितिन सिंघानिया। मैंने ये सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं। इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, अगर नहीं पढ़ोगे यू वुड बी मिसिंग आउट ऑन मोस्ट ऑफ थिंग्स, यू जस्ट नीड टू डेवलप दैट एप्टीट्यूड। So if I have not read those books, I have read some other supplement for that. So books जितना कम आप रखोगे उतना अच्छा रहेगा। मेरा बुक लिस्ट बहुत ही सिंपल था। I covered NCERT of all the subjects. Then I covered basics. हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए I went with मुरनाल सर की वीडियोस. Apart from that, I read Lakshmikant, and I guess these are the subjects which are there. Ethics के लिए I read one book, Balaji. That these were the all books which I had read. NCERT plus these 4 or 5 books. I did not read Shankar IAS. I did not read Nitin Singhania. These I covered with some other sources, online research करके. तो मैंने अपने sources को बहुत कम रखा. मैंने हिस्ट्री में ये पढ़ना, मतलब रमेश चंद्र गुहा पढ़ना है, इंडिया फॉर गांधी पढ़ना है. आई डिडंट डू ऑल दोस थिंग्स. मेरी बुक लिस्ट बहुत छोटी थी, बट आई मेड श्योर अगर मेरी बुक लिस्ट छोटी है, अगर मेरे रिसोर्सेज कम है, तो वो मेरे को इतने अच्छे से याद हो कि मेरे को दिक्कत ना हो कुछ भी अटेम्प्ट करने में. So I revised them multiple times. So this, when I'm revising them multiple times, मेरे को चीजें याद हो रही हैं. I'm getting hold of things, even the small things, and that gave me confidence. तो जब मेरे को चीज याद रही, छोटी छोटी चीज याद रही, that was the biggest kick for me. ये याद आ रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मेरे को, I am able to attempt questions. So that is the first step of motivation. That is the first step to keep you moving on that path. Second is practice. अब वो चाहे प्रीलिम्स का प्रैक्टिस करना हो या मेंस का प्रैक्टिस करना हो, प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आफ्टर यू हैव डेवलप्ड अ बेसिक लेवल. तो स्टार्ट प्रैक्टिस, चाहे वो मॉक देना हो, एमसीक्यू देना हो, चाहे आंसर राइटिंग करना हो. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर रिफाइंड योर आंसर्स आर, द मोर रिफाइंड योर स्ट्रेटेजी इज. अगर प्रीलिम्स की बात करूँ, प्रीलिम्स में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस साल का पेपर इस वाली बुक से क्वेश्चन उठाया है, उस वाली बुक से उठा लिया है, अब तो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन पूछते हैं. बट माय काउंटर आर्गुमेंट इज, आर वी सपोज टू रीड ऑल दोज बुक्स? No, we are not. What are we supposed to do? We are just, when we are reading NCERT or any book for that matter, our only purpose should be to understand the concept, to have a basic framework in mind. अगर मेरे को क्विट इंडिया मूवमेंट, CDM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बेसिक्स पता है, उनकी टाइमलाइन पता है, उनके रीजन्स, क्यों कॉजेस पता है, कहाँ कहाँ पे वो पता है, आई वुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दीज पैरामीटर्स. आई डोंट नीड टू सर्च. जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस साल का ये क्वेश्चन उस रामचंद्र गुहा के बुक से आया है. द थिंग इज, आपको क्वेश्चन, you should not seek answer of a question from NCERT or any textbook. That should not be your approach. अगर वैसा करने जाओगे आपकी बुक लिस्ट खत्म ही नहीं होगी. Your approach should be to develop the understanding. अब उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आई विल गिव यू. इन आई गेस सबको हमें बेसिक्स तो पता है ना सिविल सर्विस का. तो मैं सीधा प्रिपरेशन पे आ गया. बेसिक्स तो एवरीवन इज क्लियर विद बेसिक्स. हाँ, सो मैं 2019 का पेपर का एक एग्जांपल देता हूँ. इन प्रीलिम्स 2019 देयर वाज अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक बुक का नाम दे रखा था, और मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा था, ऑथर का नाम दे रखा है, बुक का नाम दे रखा है, और उसमें ऐसा लिखा है कि उस बुक में बंगाल को इंडिया माना गया था. बंगाल वाज रेफर्ड टू एज इंडिया इन दैट बुक. तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स थे 3. नाउ आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बुक. मेरे को उस बुक के बारे में नहीं पता जब मैं पेपर लिख रहा था. आई वाज नॉट इवन नोइंग दैट ऑथर. मेरे को ना बुक का पता ना ऑथर का पता है. हाउ वुड आई अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन? मेरा नॉलेज उस पे जीरो है ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. बट आई न्यू वो जो नाम दे रखा था, दैट वाज सम चिपलूनकर टाइप नाम, मतलब ऐसा कुछ सरनेम था. अब आई नो चिपलूनकर बंगाल में नहीं होते. वो चिपलूनकर इज बेसिकली मराठी नाम. आपने जब पढ़ोगे एनसीईआरटी या रेवोल्यूशनरी पढ़ोगे, उसमें चिपलूनकर यू विल फाइंड इन महाराष्ट्र में. सो आई नो ये नाम तो महाराष्ट्र रिलेट कर रहा है. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट दे हैव द ऑथर इज रेफर्ड टू बंगाल एज इंडिया.
Why would a Marathi person refer Bengal as India? He would refer Mumbai or Pune as India. So on that elimination link, मेरे को कुछ नहीं पता book और author के बारे में, but only on correcting these 2 points I was able to answer that question correctly. Option eliminate हो गया, answer मेरा आ गया. So this is the point which I want to make, that आपको एनसीईआरटी में आपको ऑथर नहीं मिलेगा, आपको बुक नहीं मिलेगा, आपको उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा, बट यू वुड बी गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, एक टाइमलाइन मिलेगी, एक ज्योग्राफिकल एरिया की समझ आएगी. वो चीज आपको एनसीईआरटी डेवलप करनी है. So when you're reading any book from that perspective, you would be able to answer most of the questions directly or indirectly. So in this way, you should approach any book. Don't seek any answer directly, but try to develop the connections. These connections are very important, both in prelims and mains. So this is about keeping your resources simple. Second is practice. अब ये जो मैंने चपलून का वाला एग्जांपल दिया ना, आई वाज एबल टू कनेक्ट दीज डॉट्स बिकॉज जब मैं प्रैक्टिस करता था घर पे मॉक टेस्ट की, वहां पे जब मेरी लॉजिक्स फिट होते गए तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया. आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. ऐसे नहीं सारे समय 50 क्वेश्चन लॉजिक से कर रहा हूँ तो 50 के 50 सही हो रहे हैं, बट 50 में से इफ आई एम गेटिंग 35 करेक्ट एंड 15 रॉन्ग, मेरा आउटपुट तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना. 35 का हो जाएगा 70, 15 का हो जाएगा 10 के अराउंड 9, तो आई एम गेटिंग 65 प्लस 65 मार्क्स with these logics. So this is how you approach any question. Most of you would be doing it, but I'm just saying, जब बुक पढ़ रहे हो वो उस अप्रोच से पढ़ो. Don't seek answers from book. Seek concepts, seek clarity from the book. Coming to the third point, that would be revision. तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए, मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए. अब वन नोट में यूज करता था, और रात को सोने से पहले उसमें एक फीचर होता है हिस्ट्री करके. तो पूरे दिन में जो भी मैंने एडिट करा है अपनी पूरी नोटबुक में, वन नोट की नोटबुक में, वो उसमें दिख जाता था. तो एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड आई यूज्ड टू गो डू दैट हिस्ट्री टैब फीचर. उस पर जो भी रिव्यू होते थे वो आ जाता है, जो चेंज करा है, एंड आई यूज्ड टू गो थ्रू देम. तो एक रिवीजन मेरा हो जाता है 1 घंटे के अंदर. दैट रिवीजन रियली हेल्प मी अलॉट. चीज़ें याद हो गई, चीज़ें कंसोलिडेट हो गई. मेरे को एक जो मैंने पढ़ा वो सुबह पढ़ा, वो शाम को याद हुआ, फिर हफ्ते में अगेन आई टू डू दैट. संडे को मैं रिवीजन करता था पूरे हफ्ते में पढ़ा. तो इन दैट वे मेरी चीज़ें कंसोलिडेट होती गई. आई कुड बिल्ड अपॉन देम. मैं भूला नहीं चीज़ें. तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो. पहला, अपने बुक लिस्ट को बहुत सिंपल रखो. दूसरा, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. तो मैंने प्रैक्टिस के बेस पे ही अपना लास्ट ईयर का मेंस क्लियर करा था. तो लास्ट ईयर आई कुड नॉट प्रिपेयर मच क्योंकि मैं जॉब कर रहा था. लास्ट ईयर ऑल्सो आई रीच्ड टिल इंटरव्यू. मैं जॉब कर रहा था, ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं पाया. मेंस के लिए मेरे पास 2 महीने ही थे, एंड उन 2 महीनों में मैं कुछ ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया. सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था मेरा. बट वट आई मेड ए श्योर कि मैं रोज 3 आंसर लिखूँ. अब रोज 3 आंसर लिख रहा हूँ, मेरी वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हुई, मेरा एक स्टाइल डेवलप हुआ. ऑन दैट बेसिस मैं इंटरव्यू तक पहुंचा. तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिवीजन वुड कंसोलिडेट योर कंटेंट. जितना आपने पढ़ा है वो आप अच्छे से याद कर पाओगे, रिप्रोड्यूस कर पाओगे. तो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप तैयारी कर रहे हो. इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा. अब मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ. कॉन्फिडेंस चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप लंबी रेस के घोड़े बन पाओगे. जब 2019 का मेरा प्रीलिम्स था, तो जब मैं मॉक टेस्ट देता था, मेरे मार्क्स आते थे 140, 120. देर है शायद एक ही ऐसा टेस्ट होगा जिसमें मेरे 110 के नीचे स्कोर गया होगा मॉक टेस्ट में. इन ऑल दी अदर मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू स्कोर मोर देन 120, 140. आई यूज्ड टू इवन टच 150. दैट्स वाज माय परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट्स. इन दोज मॉक टेस्ट जहाँ पे माय फ्रेंड्स आर गेटिंग 90, आई एम गेटिंग 120. So that was the gap. That was the place I was at, that comfortable level. But in the main examination on 2nd June 2019, I felt that pressure. I lost my calm. I didn't have that confidence. तो क्योंकि I was not having that confidence, मेरा पेपर बहुत बुरा गया. बहुत बुरा इन द सेंस कि मुझसे आई वाज लाइक कि मुझसे नहीं होगा, मैं बीच में छोड़ देता हूँ. A person who is getting 115 mock tests, not in one mock test, in almost all the mock tests which I have written, wrote around 40 to 50 mock tests that year. In most of them I am getting 120. वो कह रहा है कि मुझसे
पेपर नहीं लिखा जा रहा है, 70 भी नहीं आएंगे। तो वो डिफरेंस, दैट वाज श्योरली नॉट अ गैप इन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कमी होती, मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं आते, कंटेंट था मेरा, प्रिपरेशन भी थी, मेरे को चीजें याद भी थी। तो दिक्कत कहाँ पे आई कि 120 से आई एम लाइक सिर्फ 100 ही आ रहा है मेरा, बिल्कुल फेंस पे क्लियर हुआ वो वाला प्रीलिम्स। बट वो डिफरेंस कहाँ पे आया? दैट डिफरेंस वाज ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट, वो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस जरूरी क्यों, वो यहाँ पे जरूरी है। If you have that confidence, you can take your score from 100 to 120. If you're not confident, you will bring your score from 120 to 100. So this is where confidence comes into place. जितना अच्छा आप उस दिन फील करोगे, जितना अच्छा आप अपने को फील कराओगे, the better output you will get. And not just in the examination, even for the day you have to study. आपको दिन में 9 घंटे पढ़ना है. If you're not confident in the morning, you will not be able to give your best. You will not be able to sit for long. So to have a good sitting, to have a productive day, you need to have confidence, motivation, faith in yourself, because you would be feeling insecure in many a times. At that time, how would you push yourself? That is very much required. वो push के लिए आपको वही अपने preparation में faith रखना पड़ेगा, अपने marks, जब when you will be getting good marks, that will push you, that will give a kick to you that I can do it. And when you will be getting that push, when you will be having that faith in yourself, certainly you will, even if you don't make it to the list that year, or even if you're not able to clear any stage of the examination, you will feel that confidence इस बार नहीं हो, अगली बार हो जाएगा। वो चीज तभी आएगी जब आप अपनी प्रिपरेशन को देखोगे कि हाँ, आई एम एबल टू डू इट। तो इन दिस, जैसे लास्ट ईयर मेरा यही हुआ, आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। इंटरव्यू तक पहुंचा, फाइनल लिस्ट में 14 नंबर से नहीं, आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। बट व्हेन आई सॉ द मार्कशीट, अच्छा 14 मार्क्स कम है मेरे फाइनल लिस्ट से। अब आई ऑफ दी व्यू कि 14 नंबर है तो कम है, अगर थोड़ा और मेहनत करूंगा आई विल बी मेकिंग इट टू द लिस्ट। दैट वाज द कॉन्फिडेंस कि हाँ, आई हैव रीच्ड दिस स्टेज, आई हैव अ गुड बैकअप, गुड प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म। आई जस्ट नीड टू थोड़ा ब्रश अप माय कंसेप्ट्स, थोड़ा ब्रश अप माय फैक्चुअल नॉलेज, एंड आई कुड इजीली क्लियर इट। And with that motivation, with that confidence, with that faith, belief, I'm sitting in front of you giving this talk. So this is all the game of confidence and patience. अगर उस साल में patience अपना lose कर देता, I could not have written this year का examination. So it's all the game of faith, confidence and patience. तो जितना आपने वो develop कर पाओगे, the better it would reward you, not just in this preparation, even in future terms. This has been my छोटा सा जर्नी 3-4 साल का about this preparation. If you have any doubts, अगर आप मतलब doubts तो नहीं, if you want to ask anything about preparation, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ बुक लिस्ट के बारे में हो, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ डाउट हो, आंसर राइटिंग के बारे में हो, feel free to ask. हाँ अमन, सॉरी आतम। I wanted to ask that, like, as you are giving a CSE, UPSC, you might have lot of interest. So how do you really figure out what optional you want to select? When we are talking about optional, I would say 2-3 things should determine your optional. First should be your interest in that particular subject matter. जैसे I have done law from Gujarat National University, and I have been a good student throughout college life. So I had that aptitude for legal concepts, legal. I had that legal background. So I opted law without any second doubt. But if you think you need to change your optional, you need to have different optional. So take a subject जिसमें आपको interest हो. That should be the first and the very important thing. Aspirant अगर आपने देखा हो, Aspirant TV series, उसमें भी optional के ऊपर एक episode बनाया है ना पूरा। तो उसमें वो मार्क्स भी देखता है, बुक लिस्ट भी देखता है, बाकी टॉपर्स के वो भी देखता है। बट एट द एंड फाइनल फाइनल क्या होता है, जो मेरे को अच्छा लग रहा है पढ़ने का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी सब्जेक्ट, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। सेकंड, you should also see कि how that optional is performing. जैसे it has been said कि law is not a good rewarding optional, ऐसा बोला जाता है, लॉ में स्कोर नहीं आता है। बट इफ यू सी दिस ईयर, there has been topper
Students who have got 290 in law, 280 in law, minus 270, तो आपको 290, 280, 270 सब पूरा रेंज मिल रहा है. इट्स नॉट दैट ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आता है. तो वो जो कंसेप्ट होता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शनल रिवॉर्डिंग नहीं है, तो जस्ट सी ऐसा है नहीं है. मेनी टाइम्स इट्स ओनली अ मिथ. तो मैं लॉ के बारे में यही बोलता हूँ सबको, लॉ के बारे में मिथ बना हुआ है कि मार्क्स नहीं आते. बट इफ यू सी 290 आ रहा है, एक ही साल में 290 भी आया, 280 भी आया, 270 भी आया है ऑफ डिफरेंट पीपल. दैट शोज लॉ जो मेहनत कर रहा है ही इज गेटिंग रिवॉर्डेड इन ऑप्शनल. सिमिलर इज विद अदर ऑप्शनल्स. थर्ड शुड बी, यू शुड बी एबल टू गेट गुड गाइडेंस इन दैट ऑप्शनल. अब कुछ कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जिन विच आर गुड, बट उनके बारे में दे आर नॉट ज़्यादा पता नहीं है. तो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज रिटन मेंस विद संस्कृत लिटरेचर. तो उसमें ही थॉट उसको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, सो ही टुक दैट ऑप्शन. तो वो ये दो तीन चीज़ें होती हैं कि आपका सबसे पहले इंटरेस्ट, दूसरा हाउ इज दैट ऑप्शन परफॉर्मिंग, एंड थर्ड उसमें आपको गाइडेंस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा कि कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोचिंग स्पेसिफिकली, बट एनी सीनियर और एनी गुड बुक जिसको प्रेफर कर पाओ, जो आपको ऑप्शनल ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर पाए. आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, I आत्मन. want to I want to just add in this question, like, is it fine to go with a language subject as optional if you have proper guidance, if there is a proper teacher? So is it good, like good marks can be obtained in language subject if we start preparing from third year itself? तो देखिए लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज देयर आर सम ऑप्शनल्स. जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में यू मस्ट हैव सीन सम पीपल विद 350 स्कोर. तो वहां पे बहुत बड़ा गैप आ जाता है. 290 इन लॉ, 350 इन मैथ्स. बट वहां पे आप देखो ना, मैथ्स इज समथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है. इफ यू हैव सॉल्व्ड एन इक्वेशन करेक्टली, यू विल बी गेटिंग द मार्क्स. इन लिटरेचर सब्जेक्ट जैसे लॉ हुआ, लॉ इज लिखने वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है. इवन यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर, द फैकल्टी वुड माइट बी गिविंग यू 7 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10. तो वहां पे थोड़ा वो गैप आ जाए. बट if you're preparing well, you would be rewarded. So most of the options are like this only. सिर्फ एक दुक्के ऐसे ऑप्शन होते हैं जो ऐसे मैथ्स की तरह परफॉर्म कर पाते हैं, जिसमें बाइनरी इक्वेशन रहेगा. बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल्स वेदर लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. एंड लिटरेचर की अगर बात करूँ, लिटरेचर में एडिट एडवांटेज क्या रहता है, लिटरेचर का बहुत एडवांटेज ही रहता है जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो आपको उसकी बहुत हेल्प मिलती है. यू वुड बी रीडिंग स्टोरीज, यू वुड बी रीडिंग पोएम्स एंड डिफरेंट थिंग्स. तो ऐसे लिखने में आपको बहुत वहाँ पे फायदा होता है. वहाँ पे आपको जो ऐसे आपका रहेगा, अगर इफ आई नॉर्मल एस्पिरेंट इज राइटिंग, उसके ऐसे थोड़ा जीएस सेंट्रिक रहेगा. जीएस सेंट्रिक मतलब फैक्चुअल चीजें रहेंगी. जो मेंस के आंसर लिखते हैं, मेंस के आंसर को एलैबोरेट कर देंगे हम. बट पर्सन विद लिटरेचर ऑप्शन कुड हैव दैट लीवे टू बी क्रिएटिव. उसमें कहानी ऐड कर सकता है. ही कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट विद अ पोएम दैट वे. तो वो दैट is a very good advantage with literature optional people. Yes, yes, thank you. जी मुस्कान. Yes, Yes, also sir. one. Okay, sorry. Yes, you can carry on. All right. Thank you so much. Sir, I just wanted to ask that how to actually start your preparation, because I am in the third year and I am really confused hearing all the things from YouTube and people. So how to start the preparation while studying, because if I do not even know how to make proper notes. So where to go in this case? See, I also started my preparation in my final year. I was in final year of my law graduation. तो तब मैंने तैयारी शुरू करी. One of the very important thing when you're starting your preparation is selecting the sources you would be referring to. Not just about static, but also current affairs. So I was a daily news reader. I never missed newspaper any day. So that was my way of doing current affairs. Many of my batchmates who uh, who have also cleared this examination, they some of them relied on magazines, monthly magazines or yearly magazines, and they did not go through daily newspaper. That depends on you. First would be making streamlining your resources. Then second would be ensuring that you are religious. Religious in the sense religious with respect to preparation, not spiritual dharma wala religious, but religious in preparation.
तो जो भी आपका शेड्यूल है, मेक अ टाइम टेबल. जितना आपको कॉलेज में टाइम देना है, डिवोट दैट टाइम टू कॉलेज. बट इफ यू आर गेटिंग 5 hours, तो मेक श्योर ऑफ यू यूटिलाइजिंग 5 hours इफेक्टिवली. अखबार पढ़ना 1 घंटा अखबार का हो गया, 2 घंटे स्टैटिक पोर्शन हो गया, 1 hour प्रैक्टिस हो गई, एंड अदर 1 hour रिविजन हो गया. जस्ट मेक अ प्लान आउट ऑफ इट and then devote your time accordingly. Make a schedule, and that way you can prepare well. All right. Thank you, sir. And Muskan, I guess you also asked about note making. So just adding to that point, uh, note making में मैं I would say make double notes. So one note मैं क्या करता था, I used to make notes. First notes would be elaborate, जिसमें description रहेगा, थोड़ा detailed रहेंगे, so that when I'm referring to them after 6 months, I can recollect the things which I've written. And then from those detailed notes, I would be making short notes. Those would be that notes which I need to just see before the examination. चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, प्री के लिए फैक्चुअल चीज़ हो जाएंगी, मेंस के लिए हो जाएगा जो मेरे को लिखना है. तो इन दैट वे मेरे पास डिटेल्ड नोट्स भी हैं जो मेरे को समझना हो, मेरे को समझ पाऊंगा, एंड मेरे पास एग्जाम से पहले के नोट्स भी है कि जो सीधा मैं एग्जाम में जाके लिख पाऊँ. So in that way, note helps me. I'm going to make a video on this also, note making. So I will share a link of that video on my channel. If you want, आप वो देख सकते हो. But note making generally ऐसा मैं करता हूँ. And many of my friends have also followed this path, this note making process. कि पहले डिटेल बनाएंगे, फिर उससे short notes बनाएंगे. Okay. All right. Thank you, sir. Yes, ऋतुराज. गुड मॉर्निंग सर. सर आपने ऐसा हमें बताया कि आप 2019 के जब पेपर दे रहे थे तो आपने आंसर राइटिंग पेपर मतलब प्रीलिम्स के बाद चालू कर दिया था उस 3 मंथ में. सर आपने सिलेबस, आपने जैसा बोला कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था उस टाइम तक, तो सर 3 पेपर अ डे मतलब सर ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स सर आप उसमें डिवोट कर रहे थे. तो मतलब पेपर राइटिंग सही होगा या सर हमें पहले सिलेबस पे मतलब ये जाना चाहिए? नहीं ऋतुराज, I'm not writing 3 papers a day. I was not writing 3 papers a day. I was writing 3 questions a day. 3 ओके क्वेश्चन would be half an hour, and then half an hour करेक्शन का, तो 1 घंटा मेरा आंसर राइटिंग में जाता था. आई वुड से सर. देखो, व्हेन वी आर मेंस की तैयारी बात करते हैं ना, इन आंसर राइटिंग आई जनरली से देयर आर 3 पार्ट्स टू एन आंसर: कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन. अब मोस्ट ऑफ अस जस्ट फोकस ऑन कंटेंट. अच्छा ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. बट मोर देन कंटेंट, यू नीड टू प्रेजेंट इट इन अ वे कि मेरे को समझ आए, मेरे को मतलब एग्जामिनर को समझ आए. And your presentation should be structured in a manner कि सारे parts adequately answer हो पाए question के. Right? अब that would be developed only with practice. वो पढ़ के नहीं होगा. तो content आपको develop करना है, that is prerequisite. Without content you can't write answer. But only with content you can't write good answer. Are you able to appreciate the difference? Writing an answer, not writing an answer, writing an answer, and writing a good answer. एक अच्छे आंसर में तीनों चीजें होंगी. तो टू डेवलप प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर यू नीड टू प्रैक्टिस. पढ़ो भी और प्रैक्टिस भी करो. थैंक यू. यस परिधि. And second, sir, that I would like to ask, current affairs के लिए do you have to update daily in the newspapers? Because every day some part of the information regarding a subject is changing. So how do we keep on revising that, like newspaper and the current affairs daily? How do we do that? So for current affairs, basically what I did was I followed newspaper. Earlier I was following Hindu, then I shifted to Indian Express, and if the newspaper, both the newspapers are good, so I was doing newspaper, and then I was supplementing the newspaper with some online resource. जो डेली करंट अफेयर आता है ना ऑनलाइन, वो मैं रेफर करता था. सो फ्रॉम न्यूज़पेपर आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द डेवलपमेंट्स एंड सम एडिटोरियल से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिल जाता था बहुत सारी चीज़ों का. एंड फ्रॉम दैट ऑनलाइन थिंग आई यूज्ड टू गेट स्मॉल न्यूज आइटम्स जो प्रीलिम्स के लिए नेसेसरी हो जाते थे. So in that way, I was doing those things and then making notes out of them. Newspaper के भी और online के भी. So whatever I was reading, मैं उसके notes बनाता था. So I was doing these two things for current affairs: newspaper and online resource.
And sir, what about the answer writing? Supposing we put the quotations of some author or some other things which are putting in an answer. So is it going to be like making a quite unique answer, or like will it be negative marks or affect some other way? So Paridhi, what I used to do, suppose there is an editorial on say Bitcoin and there is a good quotation on that. अब जहाँ पे मैंने notes बनाए हैं वहीं पे मैं वो quotation highlight कर दूंगा in my notes. I'll add that quotation and highlight that. But अब ऐसे Bitcoin पे एक article तो आएगा नहीं. There would be over a period of time there would be at least 10 articles which I would be reading. And from each editorial, if I take one quotation, it will be 10 quotations. So now I have 10 good quotations on Bitcoin. अब उसमें से जो मेरे को याद हो जाएगी या जो मैं replicate कर पाऊंगा, I would be choosing that and I would be trying to replicate that in the answer. So suppose today I have read on Bitcoin. After a week there is a question on Bitcoin in my answer writing series. अब क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो I will try to recollect that. अगर वो रिप्रोड्यूस हो गया दैट्स गुड, अदरवाइज आई विल जस्ट रेफर टू माय नोट्स कि मैंने मेरे बिटकॉइन में क्या क्या नोट्स हैं, मैंने आंसर में क्या क्या लिखा है. तो अगर मेरे आंसर में कोटेशन नहीं है, आई जस्ट ट्राई टू सी कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, कैसे ऐड कर सकता हूँ. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम राइटिंग अ आंसर ऑन बिटकॉइन, दोज थिंग्स आर देयर इन माय आंसर. सो 10 की 10 नहीं आएंगी, बट 10 में से जो मेरे को अच्छे से याद हो जाएगी और विच आई कैन रेप्लिकेट, आई वुड बी फोकसिंग ऑन दैट. फिर बाकी जो 9 है जो वो बस पड़ी रहेंगी, बट द मेन दैट वुड बी हाईलाइट, वो मेरे को याद होनी चाहिए. इन दिस वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें आंसर में इंक्लूड होती गई, याद होती गई, दैट वे. Thank you, sir. And just the last question: when to start answer writing from? When to start answer writing? So इस पे everyone has a different opinion. Some people say कि you should start answer writing at least after 3 months of preparation, जब base cover हो जाए. I have a slightly different opinion. मेरा मानना ये है कि because it's a GS examination, general studies, most of the things which we know, like अगर society है, we know society में क्या हो रहा है, we live in a patriarchal society, क्या क्या चीजें society में होता है, caste system क्या है, we have a basic idea, if not very good idea. So why can't we write answer on those topics in that case? So अगर मैं आपसे if I ask you a question, define Indian secularism, so everyone would have some idea. So try consolidating your idea. So जब आप अपने idea लिखोगे, जो भी आपका opinion है वो लिखोगे, you would be at least putting your mind, and when you would be reading about that, you would be refining your perception, your idea on basis of that material. So ये मेरा opinion होता था कि we should be writing answer from the initial stage itself, because firstly you would be thinking about that, it won't be जो हम चीजें रट लेते हैं वो एकदम से नहीं आएगी, that would be the original thing which we perceive, and that could be refined. Plus because it's GS paper, GS studies, it's not very technical thing. We can start writing answer once we have, say आज मैंने cyclone पढ़ा है, today I read about cyclone in the NCERT, I can write answer on cyclone. I can at least try to answer basic questions. What are the essential features of cyclone? What are the circumstances in which cyclones are formed? So those answers we can write. So मैं तो focus करता हूँ answer writing करना चाहिए. Depends on you, मतलब आपको कैसा ठीक लगता है. Sir, Yes, adding to this, हाँ. sir, adding to this, I have a query. Like स्टैटिक क्या होता है कि हमें इनिशियली समझ नहीं आता है, फियर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमारे लिए चीजें थोड़ी न्यू हो जाती है. जैसे कि पॉलिटी, नो डाउट हमने 10th तक ऐसा करके पढ़ा है, बट स्टिल तो उसमें क्या होता है कि स्टैटिक के साथ उसी टाइम आंसर राइटिंग थोड़ा वो हो जाता है. और आंसर राइटिंग में क्वेश्चंस, लाइक आपको तो पता ही होगा, क्वेश्चन से करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होता है कि करंट सिनारियो क्या चल रहा है और आप क्या सोल्यूशंस दे सकते हो. तो वो सिर्फ स्टैटिक करने से मुझे लगता है कि नहीं आंसर लिख सकते. तो आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या हम पहले स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर ले, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, और स्टैटिक का ही सिर्फ आंसर राइटिंग पर डे करें. सो दिस इज माय क्वेश्चन. तो मुस्कान, अगर हम स्टैटिक पहले कवर करेंगे, स्टैटिक विल टेक ऑलमोस्ट 6 months. ये तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बता रहा हूँ. इट विल टेक 9 months अगर थोड़ा practical बताऊंगा. So if you're starting if I'm starting writing answer after 9 months
एट दैट टाइम द प्रीलिम्स का स्टेज आ जाएगा, फिर तब मैं प्रीलिम्स में लग जाऊंगा, देन आई वोंट बी एबल टू राइट आंसर. प्रीलिम्स आ गया, प्रीलिम्स के बाद आई वुड बी गेटिंग ओनली 2 months फॉर राइटिंग आंसर. सो माई प्रैक्टिस इज वेरी लिमिटेड फॉर दैट 2 months. इसलिए आई एम ऑफ द व्यू कि सपोज मैं साइक्लोन पढ़ा हूँ, व्हाई कांट आई राइट एटलीस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट साइक्लोन. नाउ यू टॉक्ड अबाउट कि थोड़ा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, इवन द स्टैटिक क्वेश्चन हैव दैट करंट इंक्लिनेशन. So you are doing both the things together, right? Static and current. You can include that. Even if you are not doing that together, you're not able to incorporate both these things together. Just try to write a good basic answer. मैं ये नहीं कह रहा हूँ you write a very good answer, but take any say पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं. इफ सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, so you know the contempt of court क्या होता है, you know the types of contempt of court. You can give 1 or 2 examples of contempt of court. So in that way you would be able to at least frame your answer, right? If not a very good answer जिसमें करंट के एग्जांपल्स हो, करंट का कंटेक्स्ट वो अगर नहीं भी हो, बेसिक तो आपका स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, राइट? एंड इन दैट यू कैन इम्प्रूव. अब अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन कोई डायग्राम डालना है, तो कंटेम्प्ट के 2 टाइप्स होते हैं. यू कैन ऐड अ डायग्राम ऑफ दैट. अगर आपको कंपेयर करना है, यू कैन ड्रॉ अ टेबल एंड कंपेयर सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. दैट प्रेजेंटेशन वुड बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस. वो एकदम से नहीं आएगा. तो इसलिए आई एम ऑफ द व्यू कि आंसर राइटिंग करना चाहिए वंस एटलीस्ट जब आपने टॉपिक पढ़ लिया है, उस टॉपिक पे तो फिर आंसर राइटिंग करना चाहिए, ताकि आपका बेसिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाए. Okay, sir, also I have the query, like if we have 2 to 3, like I'm a third year student and I'm thinking of to give the exam in 2024 because of the GATE reason, like I'm thinking of to appear for GATE on 2023. So like I have 2 to 3 years or say 2 years at least. So my question is like mock test का जो series होता है वो कब start करना चाहिए? मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स मींस प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए अगर हमें स्टार्ट करना हो फॉर लाइक 2 इयर्स की प्रिपरेशन के बाद, तो कब स्टार्ट करें? और ऐसा देखो, मॉक टेस्ट के साथ साथ आई वुड इंक्लूड वन मोर थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तो ये 2 चीजें हमें करना चाहिए, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट. अब प्रीलिम्स की अगर बात करो तो जैसे अगर जून में आपका प्री है, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट. This is a very good time to start your mock test series. Mock tests. Write 1 mock test each week or one mock test in 2 weeks. वो तब शुरू कर देना चाहिए. And then when you would be entering March, at from that time onwards you should be writing 2 mock tests per week. ऐसे फिर frequency बढ़ाते रहना चाहिए. The better practice you do with the mock test, the easier it is you in the final examination. And मैं जनरली ऐसा करता था कि मॉक टेस्ट मैंने करे और मान लो एग्जाम 10th of October को जैसे था, देन फ्रॉम 1st of October आई वुड स्टॉप डूइंग मॉक टेस्ट. देन फ्रॉम 1st of October आई वुड बी ओनली डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. नाउ आई वोंट बी डूइंग फॉर कंटेंट. उसमें मेरे को मार्क्स नहीं आएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ रखे होंगे. एंड जिसमें मैं थर्ड अटेम्प्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने वो पेपर कर ही रखा है, तो मेरे को पता है क्वेश्चन के आंसर क्या है. बट स्टिल आई वुड बी डूइंग इट. I would be doing it only with the purpose to get acclimatized with the UPSC pattern. Pattern in the sense क्वेश्चन कैसे पूछता है UPSC, कहाँ पे ट्रैप बनाता है. तो सपोज एक कोई फंड बनाया 1000 करोड़ का, UPSC ने क्वेश्चन फंड का दिया 100 करोड़ कर दिया. अब दिस इज ट्रैप. फिगर सेम ही ऑलमोस्ट 100, 3 जीरो का 2 जीरो कर दिया, बट दिस इज ट्रैप. तो ऐसे ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे यूपीएससी के लूप होल्स होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, कुछ पैटर्न है क्या, वो चीज डिसाइफर करने के लिए मैं एग्जाम से 1 हफ्ता पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करता हूँ, ताकि मेरे को वो माइंडसेट समझ आए. और जो कोचिंग एवरीवन इज मेकिंग क्वेश्चन पेपर विद द माइंडसेट विद अ सर्टेन पैटर्न. तो वो जो कोचिंग के जो पैटर्न रहा है उससे बाहर आ पाऊँ और यूपीएससी के पैटर्न में घुस पाऊँ. तो इसलिए मैं 1 हफ्ता पहले वो करता हूँ. तो दिस यूज्ड टू माय स्ट्रेटजी कि मॉक टेस्ट पहले तक और 3 महीने से तो फिर ऑलमोस्ट एवरी वीक या एवरी थर्ड डे मॉक टेस्ट और फिर 1 हफ्ता पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ओके. और जो हम न्यूज़पेपर्स लाइक व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर्स, तो हमें जो नोट्स हम बनाते हैं वो हमें लाइक पार्ट वाइज बनाना चाहिए. जैसे समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी न्यूज़ है तो हमें वो पॉलिटी के सेक्शन में डाले, इकोनॉमिक्स है तो उसके सेक्शन में डाले, ऐसे हमें पार्ट्स करने चाहिए. और इसकी डेट वाइज हमें नोट्स बनानी चाहिए दैट टुडेज डेट ये नोट्स. डेट वाइज का फायदा क्या है?
कुछ फायदा नहीं है ना। पार्ट वाइज बनाएंगे तो फायदा ये होता है, माय सपोज मेरे नोट्स एक जगह रहते हैं, देयर इज अ सिमेट्री इन माय नोट्स, एक स्ट्रक्चर होता है। मेरे पास, मैंने आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोट बनाए, उसके बगल में मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के नोट्स हैं, उसके बगल में मेरे पास हाई कोर्ट के नोट्स हैं। सो ऑल दीज थ्री टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर डेट वाइज बना रहा हूँ, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया, बगल में बिटकॉइन आ गया, उसके बगल में आपका आ गया जैसे मैरिज के ऊपर कोई नोट्स आ गए, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। एंड देन बाद में अगर दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर कुछ न्यूज आ रहा है, अब मैं कौन सी डेट पे कहाँ ढूंढूंगा उसे? अब दो मेरे, ऐसे तो मेरे नोट्स में 10 जगह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा, अलग अलग जगह पे आएगा। तो एक चीज यहाँ पे आएगा, एक चीज वहां पे आएगा, ये सब टूटा फूटा रहेगा। सो इट्स बेटर टू ऑर्गेनाइज योर नोट्स। जितने नोट्स आपके ऑर्गेनाइज रहेंगे उतनी चीजें आपको इजी रहेंगी रिवाइज करने में। इट्स ऑल अबाउट, देखो आप कितना पढ़ लो, दैट इज वन थिंग, बट एग्जाम का एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले आप कितने अच्छे से चीजों को रिटेन कर पाते हो, ग्रास्प कर पाते हो, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो वो एक महीना आसान करने के लिए, वो जो मैंने आपको बोला ना कि बड़े नोट्स हैं मेरे, बल्कि नोट्स हैं, फिर एक शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स किस लिए हैं? एग्जाम से एक हफ्ता पहले मेरे को पता है मेरे को क्या पढ़ना है, सिर्फ वो नोट्स देखने, वो काम आसान करने के लिए एग्जाम से एक महीना पहले हम वो चीजें, ये चीजें करते हैं। तो जस्ट इसमें टाइम लगेगा, मतलब नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में मेरा 1 घंटा जाता था कम से कम एक नोट्स बनाने में, बट दैट रिवॉर्डेड मी। तो ये जो Okay, sir. जैसे ये जो मेरे नोट्स है ना, तो मेरे कई नोट्स, जैसे करंट अफेयर हुआ, स्टार्ट हुआ, कई नोट्स के सैंपल मैंने शेयर करे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो यू कैन व्यू दोज नोट्स मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करा है। सो शायद आपको उससे हेल्प मिले। Okay. Thank you, sir. यस जानवी। I had a question that what books would you recommend for prelim subjects like history, polity, economics, civics, and all online resources that you mentioned earlier? So Janvi, I would say like these book lists are almost very sorted. Almost all the people recommend the same text. I don't think उसमें कुछ change होता है. Basics would be NCERT for history, geography, polity, science, economics. NCERT would be the base. And after covering the NCERT, go to, for history I refer to Spectrum, geography GC Leong, economics में I did मृणाल sir की videos. Then we have science में तो only NCERT. इसके अलावा environment में I did current affairs from online sources. I didn't do any book specifically. Art and culture I refer to NCERT and then some online research. But Nitin Singhani is a very good book for art and culture. और हर कोई पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी, मेरी गलती थी। इसके अलावा which all topics we have in prelims? Ethics के लिए there is a book, बालाजी is author, he is an IAS officer. उन्होंने एक बुक लिखी है, that is a very good book. इसमें anecdotes बहुत अच्छे हैं, so you can refer to that. मैंने वो रेफर करी थी, अदरवाइज मैंने मार्केट से नोट्स ले लिए थे एथिक्स के। इसके अलावा कुछ और सभी बचा? हाँ, ऑप्शनल का तो कर, हाँ, these were the I refer. And for मेंस में ये गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मेनली करंट अफेयर्स पे होता है ना, लाइक उसका कोई बुक वगैरह नहीं होता है गेस? उनमें बुक होता है, बट टू टेल यू द ट्रूथ, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके खुद ही आंसर बन जाते हैं इन चीजों पे। सो मेरे आई डिडंट रेफर एनीथिंग फॉर गवर्नेंस। ये जो टॉपिक्स होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, इनके लिए कुछ मेरे पास अलग कुछ मैंने रेफर नहीं करा। इट वाज ओनली द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस व्हिच आई डिड फॉर द ईयर लॉन्ग। तो मेरे नोट्स अपने आप को इस पे तैयार हो गए। सो फॉर प्रेशर ग्रुप आई हैड 1/3 ऑफ द पेज के नोट्स थे मेरे प्रेशर ग्रुप्स पे, एंड दे वर कंप्लीट इन देमसेल्व्स। तो इस तरीके से मेरे आंसर राइटिंग के थ्रू ही मेरे नोट्स बन गए। मैं कुछ उन पे अलग से रेफर नहीं करा। दोज वर दैट काइंड ऑफ नोट्स जो मैं आंसर में लिख पाऊं, क्योंकि वो आंसर से ही मैंने उठाए हैं। Okay, and people recommend second ARC reports, like what specific सिर्फ recommendations और issues थोड़ा देखने के लिए, क्या वो सही होता है second ARC report? कोई भी अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उठाओगे बहुत अच्छा होता है। Okay. You can refer to नीति आयोग का India@75. That is a very good document. Economic survey is a very good document again. ARC very good document. तो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट
प्लान, बहुत अच्छे से चीजें बताई होती है, बहुत ही अच्छी चीजें बताई होती हैं, बट उसमें दिक्कत क्या होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो इफ यू कैन टेक द टाइम आउट, प्लीज डू रेफर टू देम. एंड इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट उनके पेज पलट के देख लो. उसमें जो जो डायग्राम आएंगे ना, बहुत अच्छे डायग्राम्स होते हैं. तो मैं मेंस के टाइम पे यही करा. मैंने ये जो रिपोर्ट्स थी, इंडिया 75, ARC हो गई, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इन सबको मैंने फ्लिप करके देखा. जो जो मेरे को डायग्राम अच्छे लगे, मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिए. एंड दो डायग्राम छोटे होते हैं, सुंदर होते हैं, एंड यू कैन रेप्लिकेट देम, सो दैट एड्स टू योर आंसर. ओके, सो ये वाली जो चीज आपने कहा, ARC रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, तो वो हमें जब हम अपीयर करते हैं जिस ईयर में, आई थिंक हमें उसी ईयर का करना चाहिए, राइट? ऐसा कुछ नहीं है. या फिर पहले भी? इंडिया @75 जो डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, वो शायद अब 3 साल पुराना हो गया है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा. बट द कंटेंट विच इट हैज़, वो बहुत अच्छा कंटेंट है. मतलब इट्स रियली वेरी गुड. मैं इंटरव्यू के लिए वो पढ़ा था. सो दैट हैज सम नोबल पॉइंट्स. तो डू दैट इफ यू हैव टाइम. बट अगर नहीं पढ़ पाते, तो एटलीस्ट डायग्राम्स तो देख ही लो, एक बार इंडेक्स तो देख ही लो. एंड ऐसा नहीं है उस साल का ही पढ़ना है. उस साल का पढ़ने में बस ये होगा, जो करंट डेवलपमेंट है, कुछ नया टॉपिक न्यूज में है, तो वो आ जाएगा. 2017 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उससे 1 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में डिमोनेटाइजेशन के बारे में एक चैप्टर आया था. तो उससे 1 साल पहले उसी साल, तो वो रिलेटेड हो गया. बट अदर जो बाकी चैप्टर्स है एजुकेशन के ऊपर, अगर चैप्टर हो, दैट वुड रिमेन रेलेवेंट थ्रू आउट द, मतलब फॉर एटलीस्ट 5 फॉर नेक्स्ट 10 years, वो तो रहेगा ना. एनईपी ओके, तक 5-10 इयर्स तक वो रेलिवेंट रहता है उसका कंटेंट. और नया डेवलपमेंट आ जाए, जैसे एनईपी हो गया, ओके, हाँ हाँ. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. अब उसके बाद नया नया कुछ डॉक्यूमेंट होगा, तो उसमें अच्छी चीजें आएंगी. बट तब तक के लिए तो वो रेलेवेंट, जब तक लैंडमार्क कुछ चेंज नहीं होता है, तब तक वो रेलेवेंट रहता ओके, थैंक यू. है. समवन एल्स? हाँ, सरस्वती. Yes, my question is that what things you did for your health, because it's a very long journey, so we feel very pressurized. So what things you did? तो मतलब that is a very important topic which you have raised, mental health. You would be pressurized in various ways. Pressure आएगा, insecurity आएगी, वो सब रहेगा. So in that case, one of the very important thing is your support system. People you are having as your support system, your parents, your teachers, your friends. That would be a very important role. So my parents never made me feel that pressure जो उनके ऊपर आता था, जैसे सोसाइटी से आया. My friends always encouraged me, even if I am not performing well, नहीं हुआ, selection नहीं हुआ. So last year I could not make it to the list, but on the day of the exam, on the day of the result, before the results were announced, I received an email from my friend. कि irrespective of the result, we are proud of you. So those things really motivates you, keeps you going. So वहाँ पे आपका support system बहुत help करता है. So choose your friends ऐसे जो आपको support कर पाए. Second would be how, मतलब आप अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हो. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीइंग पॉजिटिव, टेकिंग थिंग्स इन पॉजिटिव स्पिरिट. अगर आप हर एक क्रिटिसिज्म को नेगेटिव उसमें लेने लगोगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन, क्योंकि you are going to review or going to submit your answers for reviewing. बहुत ही प्रिलिमिनरी चीज बता रहा हूँ. अगर उसने कुछ नेगेटिव फीडबैक दिया, एंड इफ यू टेक इट दिस वे कि यार मेरे आंसर गंदे हैं, मुझसे नहीं लिखा जाएगा, क्या होगा, दैट वुड demotivate you, that would pull you down. But if you take it this way कि यार ठीक है, मैं यहाँ तक लिखूँ, मेरे को पता चल गया मेरे को किस किस चीज़ों पे काम करना है, that would push you. Now you know कि you need to just improve on 2-3 points and आपका आंसर अच्छा हो जाएगा on a particular topic. So taking things in positive spirit, that is a very important thing in this journey. तो ये दो चीज़ें मेरे को बहुत लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम जो आपका हो कैसा है, और दूसरा आपका खुद का एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, वो पॉजिटिव होना चाहिए. Thank you, sir. Anyone else?
जी। So in context of syllabus, are we supposed to make short notes on each and every word given in the syllabus? देखो, if you can do that, that is a very good thing. At least for ethics, you should do that. So ethics के if I share my notes in my ethics के, in my ethics note there was definition for each of the keyword. There were at least 3 examples. Examples in the way, one from personal life, one from one example of a civil servant, and one from any social life. किसी नेता का हो गया, किसी क्रिकेटर का हो गया, दैट में. तो इंटीग्रिटी का एग्जांपल, ऑनेस्टी का एग्जांपल हुआ, तो मैंने बचपन में ज़्यादा पैसा आ गया तो कभी वापस करे हो, छोटा सा एग्जांपल. फिर ऑनेस्टी का अगर एग्जांपल ले रहे हो कि सचिन तेंदुलकर को आउट डिक्लेयर नहीं किया गया बट ही वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड, तो वो उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई. सो इन दैट वे मैंने ऐसे छोटे-छोटे एग्जांपल्स का पूरा लिस्ट बनाया विद ईच कीवर्ड गिवन इन द सिलेबस. तो उस तरीके से आपके नोट्स ऑर्गेनाइज हो गए, आपकी चीजें कवर हो गई. इफ यू कुड डू दैट फॉर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दिस सिलेबस अपार्ट फ्रॉम द जीएस4, बहुत अच्छी बात है. दैट इज वेरी गुड. तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, होलिस्टिकली कवर हो जाएगा. तो मेरे तो सिर्फ एथिक्स में ऐसा था, बट अगर आप सब में रेप्लिकेट कर पाओ, मेकिंग नोट्स ऑन ईच पॉइंटर्स, दैट वुड बी वेरी गुड. Okay, so thank you. एनीवन? Yes, sir. हाँ. Sir, I really had this confusion. Like, do you really require a coaching institute, or is it हाँ. all good if you can go by yourself all in? देखो, कोचिंग का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? पहले तो मैं बोलूंगा कोचिंग वालों, मतलब हमने खुद ही ऐसा मन में मान लिया, विदाउट कोचिंग वी विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट. ये जो हमने मेंटल रोड ब्लॉक खुद ही बना लिया है कि दिल्ली में जाके इतने 10 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाउ वुड बी एबल टू compete with them. This is the biggest roadblock which you have created. कोचिंग वाले करते क्या है? मतलब they would be just helping you with the syllabus. वो आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो बुक में लिखा है. अब पॉलिटी का अगर क्वेश्चन है, क्या वो लक्ष्मीकांत से नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ना. सो एंड इवन इफ कोचिंग में पढ़ लिया आपने लक्ष्मीकांत या पॉलिटी हो गया है, विल यू नॉट बी रीडिंग लक्ष्मीकांत अगेन? यू विल बी. सो कोचिंग बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, बट ऐसा होता है कोचिंग से आपको एक पुश मिल जाता है. देयर, जैसे मैं था जब मैं इनिशियल तैयारी कर रहा था, सो आई नीडेड दैट पुश. मेरे को चाहिए था कि मेरे साथ एक ग्रुप हो जिसमें मेरे को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वाली फील है कि हाँ ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं. मेरे को थोड़ा पुश चाहिए कि अगर मैं थोड़ा ढीला पढ़ूं तो मेरे को आगे पुश कर पाए. दैट्स व्हाई आई जॉइंड सीसीई. अगर ये कोचिंग में, जो भी कोचिंग में आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको खुद पढ़ना ही है. ऐसा तो है नहीं कि कोचिंग में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे. डू नॉट रिलाई कोचिंग फॉर कवरिंग दिस सिलेबस. नेवर. आपको सिलेबस खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो कोचिंग में हुआ हो नहीं हुआ हो. द ओनली थिंग कोचिंग वुड हेल्प यू इज प्रोवाइडिंग विद दैट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट हो गया, दूसरा गाइडेंस हो जाता है, तीसरा पुश हो जाता है. इन 3 चीज़ों के अलावा कोचिंग में मेरे को नहीं लगता आपको किसी और चीज़ के लिए रिलाई करना चाहिए. आपको खुद ही तैयारी करनी है. आपको खुद ही अपने आप को देखना है हाउ आर यू डूइंग ऑन योर डेली प्लान, ऑन योर वीकली प्लान्स, मंथली प्लान्स. कोचिंग कैन ओनली गिव यू दैट सपोर्ट और थोड़ा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं प्रोसेस को, बट डू नॉट रिलाई कोचिंग फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस. एंड कोचिंग इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. सो मैंने कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, मैं दिल्ली के, वहाँ पे मैंने कोई कोचिंग नहीं ली. मैं जितने, जैसे 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, आई डिडंट जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. मैं खुद ही तैयारी करा, अपने नोट्स खुद ही बार बार रिवाइज करता रहा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद करी. दैट वाज माय थिंग. So I don't think कोचिंग बिल्कुल भी जरूरी है. Got it, sir. Thank you. Okay sir, so we can like go Delhi और without coaching भी, like अगर हम खुद से notes बनाए 1 साल और ऐसे सारी टेस्ट सीरीज मतलब ट्राई करें टेस्ट पेपर्स लिखने की, तो भी आई गेस दैट इज आल्सो कन्वीनियंट. एग्जैक्टली. देखो, बस अब ये समझो ना, आपको एग्जाम में करना क्या है. आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करना है और आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है.
अब इफ यू थिंक यू कैन डू दैट, देखो फ्री की टेस्ट सीरीज तो आपको मार्केट में ऐसे ही मिल जाएगी। टेक दैट, अपने घर पे आके आंसर लिखो। प्रैक्टिस राइटिंग हुआ, आंसर राइटिंग आपको, यू राइट आंसर, यू कंपेयर योर आंसर विद अदर्स आंसर, डिस्कस करो, मॉडल आंसर से कंपेयर करो, यू वुड बी इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग। तो मेरे को नहीं लगता कोचिंग ऐसे कुछ रिक्वायर्ड। हाँ, बस 2-3 चीजें होती है जो मैंने आपको बताया कि गाइडेंस चाहिए या पुश चाहिए या एनवायरनमेंट, एक ग्रुप बनता है ना, अगर आपको ग्रुप चाहिए उसके लिए कोचिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जरिया बन जाता है आपको उस ग्रुप से कनेक्ट करने का। अदरवाइज आई डोंट थिंक कोचिंग इज दैट अ बिग थिंग। वो बस हमने मेंटल रोड ब्लॉक बना रखा है, और कोचिंग वालों ने भी शायद वो हाइप क्रिएट कर रखा है दिल्ली में कि कोचिंग नहीं है तो नहीं हो पाएगा, हमारे हमारे कोचिंग से इतने बच्चे निकले। सो आई वुड टेल यू, अब मेरा नाम 10 कोचिंग वाले छाप रहे हैं, बट मैंने कहीं पे कोचिंग नहीं लिया है। इट इज ओनली द मॉक इंटरव्यू जो मैं वहां पे देने गया हूँ। एंड सिमिलर इज द केस विद मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका आप देखोगे होर्डिंग पे नाम छपा है। सबने बस ज्यादातर मॉक इंटरव्यू, क्योंकि अब घर पे नहीं हो पाता, वी नीड टू गो टू द कोचिंग, उसके लिए मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम। एंड वी गो टू एटलीस्ट 5-6 प्लेसेस, वहां पे 5-6 जगह पे हम हमारा नाम आ जाता है। दैट वे दे से कि ये हम यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है। वी हैव जस्ट मोस्ट ऑफ अस, जैसे आई हैव मेट many batchmates in Bangalore abhi. So most of us had only given up, only taken coaching या only gone to any coaching institute for mock interview, not for any classroom. बहुत कम ऐसे होते जो क्लासरूम लेते हैं। यानी कि अगर आप क्लासरूम की भी बात करो, जैसे एक इंस्टीट्यूट दिल्ली में, इंस्टीट्यूट वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, वहां से 1 लाख बच्चा अगर पढ़ रहा है तो बन तो 1,000 ही रहा है ना। तो बाकी 99,000 students who have enrolled there, they are not getting selected. So it's not coaching जो आपको हेल्प कर रहा है बना, कोचिंग कैन ओनली थोड़ा हेल्प कर सकता है, बट आखिर में आपका ही एफर्ट है जो आपको उस लेवल तक पहुंचाएगा। तो कोचिंग, ऐसा कोचिंग का इतना वो बड़ा हाइप कुछ नहीं है। ऑल्सो सर, अगर हम दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, सपोज एक पर्टिकुलर पॉलिटी खत्म हो गया है, फिर हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया, तो जब हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, तो क्या हमें पॉलिटी भी लाइक थोड़ा बहुत रिवाइज या उसका आंसर राइटिंग अलोंग विथ इट करना चाहिए, या फिर लेट इकोनॉमिक्स गेट कंप्लीटेड? वो डिपेंड कर रहा है, मतलब हाउ आर यू डूइंग योर आंसर राइटिंग। मेरी आंसर राइटिंग बिल्कुल सेपरेट थी मेरे स्टडी प्लान से। मैं मतलब ऑनलाइन फॉलो करता था एक प्लेटफॉर्म, उस पर जो भी क्वेश्चन वो पोस्ट करते थे मैं उस पर आंसर लिखता था, एंड दैट वाज नोवेयर रिलेटेड टू माय स्टडी प्लान। इवन इफ आई एम स्टडिंग पॉलिटी टुडे, अगर उनके उस पे आज इकोनॉमिक्स चल रहा है, मैं इकोनॉमिक्स पे आंसर लिखूंगा। तो वो मेरा लिंक नहीं था, बट वो मेरा लिंक इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा एक ऑलमोस्ट बेसिक कवर हो गया था। तो कुछ भी जो मेरे को पढ़ा हुआ है तो थोड़ा इसलिए आसान रहता था। अगर अभी शुरुआत करी है तो राइट आंसर होंगे सब्जेक्ट जो आपने पढ़ रखे हों, ताकि आप उन पे अच्छे से रिफाइन कर पाओ। Sir, just last question. What was your calling to take IAS? I mean, there are other services as well, like IFS or IRS. हाँ हाँ, What was your calling to be? And how did you decide that this is the best service for me? देखो ऐसा तो आई वुड से दिस बेस्ट सर्विस कुछ नहीं होता है, हर एक का इंडिविजुअल कॉल होता है। many of you would be preferring IPS over other services, some would be preferring IRS, हर एक का everyone has their own inclination. For me, it was just the in my university there was an incident. I was part of LSC, Legal Service Committee, and we were trying to get a पाठशाला constructed in a nearby village, यहीं पे पीछे, कॉलेज के पीछे। We tried for 2-3 months, नहीं हुआ, मतलब कुछ वहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ। हमने ओडा जी सबको ऐसे ट्राई करा रीच करने का, बट कुछ मूवमेंट नहीं हुआ वहाँ पे। Then an IPS officer comes to our college, और informally we took that matter up with her, and within a week वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। That was the thing which motivated me towards these services कि an IPS officer and civil servant can create this much of impact. She just पाठशाला बनाना उनके jurisdiction में आता भी नहीं है, but it was just her commitment towards these things, और हर बैचमेट जिनका उन्होंने आगे बात करी होगी कि एक सिविल सर्वेंट की वजह से गांव में कितने लोगों को हेल्प हुआ, एक इम्पैक्ट कितना क्रिएट हुआ ग्रास रूट लेवल पे।
that motivated me. Even if I'm not in that service, they say Pathshala would be under either BDO or administrative officer, not under police officer. Definitely not under police officer. तो वो मेरे को वहाँ से वो push मिला becoming a civil servant. If I get into civil services through my batchmates, if not directly through my batchmates, I can have that impact on grassroots. And even within the service, suppose कोई और service होता, then the work which I can do, then I could help the government and then the public. So वो वहाँ पे एक inclination, major inclination I got. Thank you so much. So now the time has come. I am going to invite Bhumika for formal vote of thanks. Before that, I am conveying my sincere thanks to Mr. Vasu Jain. I have no words to express the happiness. And one thing is that after passing the exam also, immediately he called that he conveyed the message and he told, sir, whenever I am going to visit Gandhinagar, definitely I will visit and I will definitely share the tips for the students. So he did that also. I am so happy and I wish a successful career for him and he has to get many rewards in his career. With that, I just now invite Bhumika, please. Bhumika, you can have a So yes, that's about it. We all would like to thank Mr. Jain for taking out some of his time and sharing his insights. I'm sure they were all very helpful for us. And let's just hope that most of us see you on the other side in a few years. And yeah, so is that, that's Thank you.